To you, therefore, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your minds, so that you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. For by the grace given to me, I say to everyone among you, not to think of yourself more highly than you ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. This is the word of the Lord. Amen. जमात से गुजारिश है कि अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और अब हम गाएंगे कि 354 रूह की बारिश बरसा चाहती है. खुदावन की सिफात है, खुदावन की सिफात है, प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की सिफात है, खुदावन की सिफात है. रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की सिफात है, खुदावन की सिफात है. प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की सिफात है, खुदावन की सिफात है. शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूएगा उसकी मोहब्बत. शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूएगा उसकी मोहब्बत. अपने ईमान से उसके लहू से, अपने ईमान से उसके
قدوس 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 خدا لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے۔ خدا باپ تیرا شکر کرتے ہیں خدا باپ ساری پرستش کے لیے، خدا بندہ اس عبادت کے لیے، خدا بندہ تو نے خدا بندہ یسوع ناصری آپ نے فرمایا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں۔ خدا باپ تیرا شکر کرتے ہیں تیرے اس وعدے کے لیے خدا باپ۔ اے خدا باپ جب کہ تیرا بندہ تیرا خادم ہے خدا بندہ، تیرا کلام ہم تک پہنچانے کو ہے خدا بندہ، اس سارے وقت میں خدا بندہ ہمارے ساتھ ہونا ہے خدا بندہ۔ پاسٹر صاحب کے منہ کا ذمہ لینا، جو پیغام تو چاہتا ہے وہ ہم تک پہنچائے ہے خدا بندہ، وہ ہمارے دلوں میں گھر کرے، 100 گنا 60 گنا اور 30 گنا پھل رہے ہیں خدا بندہ۔ اے خدا بندہ اس کلام کو سن کر ہے خدا بندہ تیری روح کی معموری سے سرشار ہو کر ہے خدا بندہ جب جائیں تو خدا بندہ تیرا شکر کرتے ہوئے تیرے پیغام کو آگے پھیلانے والے ہیں خدا بندہ۔ خدا بندہ اس دوران کوئی خلل پیدا نہ ہو، نہ کوئی الیکٹرک فالٹ ہوا ہے خدا بندہ، نہ کوئی باہر سے نہ اندر سے خدا بندہ کوئی ہمیں کسی قسم کا کوئی خلل نہ ہے خدا بندہ۔ پاسٹر صاحب کو برکت دینا خدا بندہ، ہم سب کو برکت دینا، یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع ناصری کا نام لے کر، آمین۔ یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی آج چاہتا ہوں، اور خدا باپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بار پھر یہ موقع ملا کہ آپ کے درمیان خدا کے کلام کو بیان کر سکوں۔ تھوڑا سا ولیوم، تھینک یو شاہین بھائی، پلیز ریکویسٹ ہے نیکسٹ ٹائم اگر کبھی موقع ملے تو مجھے وہ ہینڈ فری وہ دے دیں نیکسٹ ٹائم۔ اٹس آل رائٹ ناؤ، اٹس آل رائٹ بٹ نیکسٹ ٹائم، کیونکہ سم ٹائمز کچھ ایسے ہوتا ہے، دیٹس ایون بیٹر۔ تھینک یو۔ تھینک یو۔ آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی پینتیکاسٹل جو سٹائل ہے تھوڑا سا آزادی کے ساتھ، کسی کو پتہ ہے کہ آج کلام کا کیا موضوع ہے، کیا سبجیکٹ ہے؟ کوئی اسکرین پہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ الہی انتباہ، خدا آپ کو انتباہ کرتا ہے، متنبع کر رہا ہے اور ہمیں وارننگز دے رہا ہے حالات کے تحت، واقعات میں سے، کلام میں سے۔ سم ٹائمز ہمارے اپنے دل کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے، لیکن بہت مرتبہ ہم اس آواز کو دبا دیتے ہیں۔ الہی انتباہ، ڈیوائن وارننگ، یہ ابھی جو آپ کے سامنے حوالہ پڑھا گیا، مائکا 3rd چیپٹر، میکا 3 باب، یہ تقریباً آج سے 2800 سال پہلے یہ انتباہ قلم بند کیا گیا۔ بہت سے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے صرف تھا، لیکن کلام جو ہے وہ ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر انسان کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، پچھلوں کے لیے اور آنے والوں کے لیے یہ ایک وارننگ ہے۔ اس کی جو 5ویں آیت ہے وہ خاص طور سے خادموں کے تعلق سے ہے، ان نبیوں کے حق میں جو میرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو لقمہ پا کر سلامتی سلامتی پکارتے ہیں، لیکن اگر کوئی کھانے کو نہ دے تو اس سے لڑنے کو تیار ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اب تم پر رات ہو جائے گی جس میں رویا نہ دیکھو گے، اور تم پر تاریکی چھا جائے گی اور غیب بینی نہ کر سکو گے، اور نبیوں پر آفتاب غروب ہوگا اور ان کے لیے دن اندھیرا ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ آگے ہم نے نئے عہد نامہ میں سے رومیوں میں سے جو کلام کو ہم نے پڑھا، کسی کو یاد ہے ابھی کیا حوالہ پڑھا گیا؟ کسی کو یاد ہے؟ پلیز اس پہ ڈسپلے نہ کیجیے گا تاکہ آپ کی آنکھیں کھلی رہیں، آپ کے ذہن حاضر رہیں۔ 12 باب کی 3 آیت امپورٹنٹ تھی، رومیو
12 बाब उसकी पहली 3 आयात, जैसा खुद को समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई शख्स अपने आप को ना समझे। और कैसे समझना चाहिए? एतदाल के साथ, जिस हद में, जिस लिमिट के अंदर, जिस दौर से खुदा ने हमें रखा है, उससे बढ़कर कोई शख्स अपने आप को ना समझे। हम एक ऐसे दौर के अंदर रह रहे हैं जहां न सिर्फ खादमों की बल्कि कलीसिया की, ईमानदारों की अक्सरियत जो है वो सच्चाई को ना तो बयान करना चाहती है ना सुनना चाहती है। सच्चाई के ऊपर पर्दा डाला जा रहा है और यही हाल मीका के दौर में था। बनी इस्राएल अपने आप को सुपीरियर समझते थे दूसरी नेशंस के मुकाबले में। वो अपने आप को बरतर समझते थे हर लिहाज से, कौम के ताल्लुक से, इखलाकियात के ताल्लुक से, सियासी हवाले से, कारोबार के ताल्लुक से, मजहब के ताल्लुक से, और दूसरी कौमों को हकीर जानते थे और यही उनकी गिरावट का बायस बना। उनको खुदा ने अच्छी से अच्छी नेमतें दी, दूध और शहद की नहरों के मुल्क में उनको बसाया, बेबान और गुलामी में से उनको निकाल कर लाया। आज कलीसिया का यही हाल है कि वो खुदा को और उसकी बख्शिशों को भूल चुके हैं और ये इंतबाह है, ये मुतनब्बे किया जा रहा है। आज कलीसियाओं के लिए और खादिमों के लिए खास तौर से लम्हा फिक्रिया है, जो रोटी के टुकड़ों के लिए, लालच के लिए खिदमत को बेच रहे हैं, कारोबार बना रहे हैं। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, सब नहीं लेकिन अक्सरियत अपने नफा के लिए दूसरे को सेव कर रहे हैं, मुकाबला बाजी के अंदर है, एक दूसरे को अपने से बढ़कर ख्याल नहीं कर रहे। कलाम के अंदर अगर रोमियो 12 बाब के अंदर उसकी 11 आयत के अंदर देखें, 9वीं आयत के अंदर देखें तो वहां बार बार लिखा हुआ है कि इज्जत के रूप से एक दूसरे को अपने से बेहतर जानो कहा है कलाम। हमने तो एक दूसरे के साथ मुकाबलाबाजी और तकाबुल के अंदर शामिल हुए, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुद को जाहिर कर रहे हैं ना कि यीशु मसीह को। और अगर कोई यीशु मसीह को जाहिर करना चाहता है हकीकी तौर पे, सच्चाई के तौर पे, उसको पुशबैक किया जा रहा है, हौसला शिकनी की जा रही है। कब तक ये अदालत है? खुदा की अदालत हमारे दिलों के अंदर जाहिर है। क्या आपको अपने अंदर ये सुकून महसूस होता है? आप लोग या जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैंने ये सिलसिला शुरू किया है बिकॉज आई हैव अ बर्डन ऑन माय हार्ट to evangelize maximum, because we are living in the last time. This is the last hour, last moment. हमें नहीं पता कल क्या होगा, कल का सूरज हम देख सकेंगे या नहीं, हम कहां जा रहे हैं, किस रास्ते पर हैं। मैं डबल जॉब्स करता हूं, मेरे पास घर की, फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, बैक होम मेरी जिम्मेदारियां हैं। इसके बावजूद मैं ये नहीं कह रहा मैं अपने आप को only Jesus, सिर्फ यीशु मसीह, not me, not myself, not anybody else। खादमों का ये है, अपने आप को बयान कर रहे हैं। मुझे नहीं पता मैं किस हाल में आता हूं। समटाइम्स मैं नाइट शिफ्ट्स करता हूं और मैं सुबह नींद से भरा होता हूं, लेकिन मेरे अंदर पूरी रात सोच सोच के एक बोझ होता है कि किस दौर से कलीसिया को सच्चाई का पैगाम शुरू किया जाए, बताया जाए, समझाया जाए। मैं रास्ते में आ रहा हूं, रास्ते में अगर कोई जगह मुझे ऐसी मिलती है जहां पर मैं बयान कर सकूं कलाम में, रुक जाता हूं, मैं कलाम को ऑनलाइन डिलीवर कर देता हूं, इसलिए कि यीशु मसीह दिखे, मैं यीशु मसीह को बयान करना चाहता हूं। बहुत से लोगों ने एक दफा मुझे सुनी सुनाई बात मुझ तक पहुंची कि ये ऑस्टेंटेशियस है, ऑनलाइन जाना नहीं। हम जराई को किस तरह से खुदा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे ये बात मेरे कानों में पड़ी। मैंने अपनी फेसबुक से अपनी सारी दीगर पोस्टें, अपनी तस्वीरें, सब कुछ उड़ा दिया। आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन कलाम को बयान करता हूं। आप लोगों से भी गुजारिश है, मैंने आजकल ये सिलसिला शुरू किया, यीशु मसीह की जितनी तालीम है वो सारी तमसील के अंदर है, और मैंने कोशिश की है कि तमाम की तमाम 46 तमसील पैराबल्स को जो है ऑनलाइन करूं, ताकि लोग जान सकें कि तालीम हकीकी तौर पे क्या है। इसलिए कि खादिमों ने कलाम को बदल दिया है अपने नफा के लिए। दो ग्रुप बन चुके हैं मसीहियों के अंदर। एक वो ग्रुप है जो कलाम को नहीं जानता, एक वो ग्रुप है जो कलाम को जानता है, लेकिन दोनों लालची हैं।
वो खादिमों को लालच देते हैं, दावतें करते हैं, रुपए पैसे उनको देते हैं हर तौर से, लेकिन किस लिए? इसलिए नहीं कि हमारे साथ भलाई हो, इसलिए कि शायद हम उस अजाब से बच जाएं जिसका ये प्रचार कर रहे हैं। और दूसरा ग्रुप जो है वो अपने नफा के लिए, अपने लालच के लिए लोगों को सलामती सलामती पुकारना है, जो उनके लिए सच्चाई का कलाम नहीं रखते। ये वो ग्रुप है सिर्फ अपने नफा के लिए कि अगर हमने इनको सच्चाई बयान की तो ये हमारे दुश्मन हो जाएंगे। मीका के साथ भी ऐसा ही हुआ। यीशु मसीह ने सच्चाई बयान की, उसको मसलूब कर दिया गया। यूहन्ना इस्तबागी ने सच्चाई को बयान करना चाहा, उसका सर कलम कर दिया। ये लोग हैं जो कलाम को नहीं सुनना चाहते, इसलिए आज जो दूसरा तबका है वो लोगों को उनकी मर्जी का कलाम सुना रहा है, खुदा की मर्जी का कलाम नहीं सुना रहा। ये सलामती सलामती पुकार रहे हैं, लेकिन सलामती नहीं है। लोगों ने अपनी राहें बिगाड़ ली हैं, लोगों ने कलाम का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया है। खुशखबरी बराए फरोख्त हो चुकी है, लेकिन खुशखबरी बराए फरोख्त नहीं है, ये मुफ्त है यीशु मसीह के नाम में। उसने मुफ्त दी, इसकी बहुत बड़ी कीमत थी जो कोई रुए जमीन पर या इस कायनात के अंदर कोई सी रूह, कोई मुतनफ्फिस अदा नहीं कर सकता था। वो खुदा ने कीमत दे दी, आपको मुफ्त मिली है। हम कब तक दो ख्यालों में डामाडोल रहेंगे और अपने अंदर के खौफ को? लिसन, हमारे अंदर एक जंग है, लेकिन ये किस चीज की जंग है? हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं, शरारत की रूहानी फौजों से है। लेकिन बैटलफील्ड क्या है? हमारा ब्रेन, हमारा जहन है, हमारी सोच है। हमारी सोचों के अंदर एक जंग चल रही है नेकी और बदी की, और हम अक्सर बदी से मगलूब होते हैं। और ये हलीमी नहीं, ये सख्त दिली है, और ये इंतबाह ऐसे ही लोगों के लिए है जो गुनाह से, देखें गुनाह सब करते हैं। यीशु मसीह ने यह कहा, जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू थे। यहां दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट है, लेकिन हकीकी जो स्कूल ऑफ थॉट है, यीशु मसीह ने नबियों और पैगंबरों को भी कहा सब चोर और डाकू थे। बहुत से लोग जो कलाम को नहीं जानते, महज अपनी पढ़ाई करने के लिए गलत तालीम लोगों तक पहुंचा देंगे। नहीं, यीशु ने उस दौर के कहनों को या एल्डरों को या उस दौर के प्रीस्ट्स को, हाई प्रीस्ट को कहा नहीं, यीशु मसीह नबी था। और जो लोगों से, जिन लोगों से बात कर रहा था, वो भी उसे नबी जानते थे। उन्हें पता था कि वो नबी के तौर पे बात कर रहे हैं। यूहन्ना से आकर पूछा, क्या तू वो नबी है? यीशु मसीह एक नबी के तौर पे बात कर रहा था, और अपनी गवाही के लिए वो कहता है कि मैं नबी हूं। अगर मेरा यकीन नहीं करते तो उन कामों का यकीन करो जो मैं करता हूं, कामों के वसीले से मेरा यकीन करो। क्या आने वाले जो नबी थे, उन्होंने अपने यीशु से पहले जो नबी अंबिया थे, उन्होंने लोगों को नहीं लूटा? क्या दाऊद ने उरिया के और आया के खानदान पर डाका नहीं डाला? क्या उसने बत्सबा को नहीं लूटा? क्या याकूब ने अपने ससुर को नहीं लूटा? क्या उसने अपने भाई से, अपने बहलूने का हक नहीं छीना? अब्राहम ने अपने नफा के लिए गुनाह किया, मूसा ने खुदा का यकीन न किया। कौन काबिल है? यीशु मसीह कहता है एक नेकोकार है और मैं हूं। जब रात की तारीकी में कोई उसके पास आकर कहता है नेक उस्ताद, को कहता है तो मुझे नेक क्यों कहते? क्योंकि नेक तो एक ही है, लेकिन तू मुझे इकरार करता है क्योंकि तू उस्ताद है, तू जानता है नेक एक ही है, और तू मुझे नेक कह रहा है। इसका मतलब है कि तू इकरार कर रहा है कि मैं काबिल हूं। सबने गुनाह किया, सब खुदा के जलाल से डरे हुए, दूसरों को गलत तालीमात मत दो। आज हम अपनी झूठी अना के लिए एक दूसरे के साथ तकाबुल के ऊपर हैं, लेकिन खुदा का जो इंतबाह है, इसकी 28वां क्या कहता है? किसी को पता है इसकी 28वां क्या है? इब्लीस की गिरावट। उससे ज्यादा नेकोकार कौन था? उससे ज्यादा खुदा की प्रस्तिश करने वाला कौन था? वो खातिमुल कमाल था। 11 आयत पढ़ लें, क्या लिखा है? तू खातिमुल कमाल, सनत साजी तेरी पैदाइश के रोज ही से तुझ में जारी थी। तू मंसूख करोबी था। That was the only angel with true physics. वो करोबी भी था और
और जिसके हाथ खुदा के पहाड़ पर, और यहां वो था जो खुदा के पहाड़ पर रहता था। लेकिन आगे क्या लिखा है? लेकिन तू खुदा के पहाड़ से गंदगी की मांग के आ गया। वाय, जब तक के तुझ में नाराजगी ना पाएगी। उससे ज्यादा कामिल कौन था? लेकिन उसके अंदर नाराजगी कहां से आई? खुदा की एक कंप्लीट शख्सियत जिसके बारे में खुदा का कलाम कहता है था, है नहीं। कहां से उसके अंदर नाराजगी? खुदा की ऐसी कामिल शख्सियत के अंदर कहां से गुनाह आ गया? आप जानते हैं कहां से आया ये गुनाह? ये नाफरमानी बाय डिफॉल्ट खुदा ने उसके अंदर पैदा की थी। ये एक आजमाइश थी, ये एक टेस्ट था। और बाद में जब आदम को पैदा किया तो यही टेस्ट, यही आजमाइश उसके सामने भी रखी गई और हम सबके भी आप सामने है। लेकिन कलाम क्या कहता है? देख, गुनाह दरवाजा पर तुमको बैठा है। ये खुदा की तरफ से टेस्ट के तौर पे हमारे सामने है। हमें हर रोज आजमाइशों का सामना है, लेकिन हम कितनी आजमाइशों पर गालिब आते हैं या हर एक छोटी से छोटी आजमाइश के सामने भी मगलूब हो जाते हैं। गुनाह दरवाजा पर तुमका बैठा है ओ तेरा, लेकिन तू उस पर अजीजों, ये एक तबाह है। खुदा ने क्या कहा? पैदाइश में क्या पढ़ते हैं कि आदमी के ख्याल उसके लड़कपन ही से बुरे हैं। ये बाय डिफॉल्ट उसके अंदर है ताकि खुदा उसकी वफादारी को टेस्ट करे और वो उससे मगलूब हुआ। जो मगलूब हो जाता है गुनाह से वो हलीम नहीं, और जो हलीम है वो गुनाह पर गालिब आता है, लेकिन हलीम का तमस्सुर उड़ाया जाता है। और यही आज से 28 सदियां पहले मीका के दौर में हो रहा था, जिसके लिए बिलाखिर खुदा ने उसे कलाम दिया और वो चिल्ला था कि तुम पर सूरज तलूना होगा। और यहां यह ना समझे कि ये जिम्मेदारियां कलाम को समझने और उसके ऊपर पूरा करने की सिर्फ खादमों, मुबश्शिरों, मुनादों की ही है। ये हर एक ईमानदार, हर एक शख्स की जिम्मेदारी है। क्या आपने कभी अपनी जिम्मेदारियों को समझा? आप घर से चर्च के लिए निकले हैं, आप तैयार होते हैं, आपके ज़हन में क्या बात होती है? सिर्फ ये कि चर्च जा रहे हैं, एक रूटीन, एक भेड़ चाल, एक लगी वजह सिस्टम के तहत आप चल रहे हैं। बस चर्च जाना है, फलाने भी अनाउ लेट हो गए, जल्दी चलो चर्च चर्च चर्च। पर क्या कभी आपने ये सोचा है आज हम खुदा के कलाम को सुनने जाएंगे और खुदा हमसे कलाम करेगा? देखें खुदा हमारे साथ क्या कलाम कर रहा है। क्या आपने घर से निकलते वक्त कभी चर्च आते वक्त 5 मिनट रुक कर पहले झुककर दुआ की, खुदा मैं तेरे घर को जा रहा हूं, तेरा कलाम सुनने जा रहा हूं? या हम एक दूसरे को देखने के लिए या मिलने के लिए जाते हैं? कितने हैं? कौन है जो यहां आकर चर्च को खोलता है? कभी उसने कभी सोचा कि मैं चर्च क्यों खोलने जा रहा हूं? ओ लोगों ने आना है, लेकिन नो, कभी उसके जहन में, चर्च खोलने वालों के जहन में ये बात आई कि आज खुदा हमारे लिए कलाम क्या बयान करेगा। चलो चलते हैं, खुदा आज तू हमसे पहले वहां मौजूद हो, हमारे साथ कलाम कर। हर एक की ये जिम्मेदारी है। सिर्फ चंदा दे देना जिम्मेदारी नहीं, चर्च में चंदा डाल देना, खादमों को पैसे हदिये दे देना ये जिम्मेदारी नहीं है। ये आपको मुक्त नहीं कर सकता। इससे आप बड़ी उससे नहीं हो सकते कि हमने चंदा दे दिया। किसी ने कहा, पादरी ने कलीसिया से पूछा कि जी आपको पता है आज मैं क्या कलाम सुनाऊंगा और इस कलाम का क्या मतलब है? तो कलीसिया ने क्या जवाब दिया? जे हमें पता, अगर हमें पता होता तो हम आपको क्यों चंदा देते? आज कलीसिया का ये हाल है कि वो चंदा देकर, रुपया पैसा देकर, चर्च में हदिये डालकर वो अपनी जिम्मेदारी से अपने आप को बड़ी जिम्मा ठहराते हैं। हरगिज नहीं। इंसान के अंदर उसके 29 बाब के अंदर क्या लिखा हुआ है? खुदावंद का खौफ। क्या आप खुदा के खौफ में चर्च में आते हैं या महज एक जिम्मेदारी के तहत? खुदावंद का खौफ। और फिर रोमियो के 12 बाब के अंदर क्या लिखा हुआ है कि इज्जत के रूह से एक दूसरे को अपने से, क्या हमारे अंदर दूसरों की इज्जत है, मोहब्बत है? क्या कभी हमने ये सोचा? बस जैसा खुद को समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे। नोइंगली, विलिंगली गुनाह करना, हम गुनाह जानते बूझते करते हैं, हमें पता
हलाकत का बायस है। सब गुनाह करते हैं, सबने गुनाह किया हुआ है, लेकिन हलाकत का बायस जानते बूझते गुनाह करना है। क्या हम कभी इस बात पर सोचते हैं, गौर करते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, हम किससे गुफ्तगू कर रहे हैं, हम कहां पर किस मुकाम पर खड़े हैं? मीका के हवाले की तरफ वापस आते हैं और मैंने कहा, ऐ याकूब के सरदारों और बनी इस्राएल के हाकिमों, सुनो, क्या मुनासिब नहीं कि तुम अदालत से वाकिफ हो, खुदा के इंतबा से वाकिफ हो? अफसोस कि हम उस मुकाम से गिर रहे हैं जब हमारे अंदर हलीमी नहीं आती, जब हमारे अंदर तकब्बुर, गरूर, बड़ापन, दूसरे को नीचा करने और नीचा दिखाने का गुनाह हमारे अंदर आता है, तब हमारी हलाकत होती है। सब गुनाह करते हैं, लेकिन लोग जो खुदा से रजू नहीं करते, उनके लिए कोई उम्मीद नहीं। वाज़े मीका कह रहा है, सुनो, खुदावंद की अदालत को सुनो। बनी इस्राएल के पहले दो बादशाह थे, साउल और दाऊद, दोनों ने गुनाह किया। अब दोनों ने उस गुनाह की माफी भी मांगी, लेकिन किसको माफी मिली और किसको नहीं मिली? सैमुअल आपे से बाहर हो गया, अपनी औकात भूल गया, अपना वो वक्त भूल गया जब वो बाप के गधे ढूंढता था, जंगलों में मारा मारा फिरता था, बनी इस्राएल कौम का बादशाह बन गया, अख्तियार वाला बन गया, और जब उसके पास अख्तियार आ गया, कुव्वत आ गई, उसने नाजायज इस्तेमाल किया और खुदा की कहानी को गजब करना चाहा और खुद कहानी की खिदमत करना चाहिए। तो क्या हुआ? सैमुअल आ गया, सैमुअल ने उसे क्या कहा कि खुदा ने तेरी सल्तनत तुझसे छीन ली, चाक कर। उसने क्या किया? दूसरे सैमुअल में आप पढ़ सकते हैं, उसने क्या किया? उसने सैमुअल से माफी मांगी, सैमुअल मुझे माफ कर, मेरे लिए दुआ कर। और क्या हुआ? क्या उसे माफी मिली? वो दुश्मन के हाथों कत्ल हुआ और उसका बेटा मारा गया। उसको उसने माफी की तलाश की, उसने तौबा की तलाश की, लेकिन इंसान के सामने, पादरी के सामने, खादम के सामने, मिशन के सामने, सिस्टम के सामने, अख्तियार वालों के सामने, और उसको खुदा ने कबूल ना किया। दाऊद ने गुनाह किया, और दाऊद ने कितना सा गुनाह छुपाए रखा? कमोबेश 1 साल उसने उस गुनाह को छुपाए रखा। उसने बत्सबा के साथ गुनाह किया, उसने अपने एक वफादार फौजी को लूटा और उसको छुपाए रखा। नेतन कब उसके पास आया? नातन नबी, जब वो बच्चा पैदा हुआ था। तो कमोबेश 1 साल गुजर गया, उसने 1 साल तक छुपाए रखा, और नेतन ने आकर कहा कि तूने खुदा का गुनाह किया है। तो दाऊद ने क्या किया? उसे कहा, नेतन मुझे माफ कर, नेतन ने तुझसे माफी मांगता हूं। क्या कहा दाऊद ने? खुदा मेरा गुनाह से, उसने खुदा से माफी मांगी, और जो ही वो खुदा की तरफ रजू हुआ तो खुदा ने, नेतन ने खुदा का पैगाम उसको कहा, खुदा ने भी तेरा गुनाह, उसने कहा मैंने खुदा का गुनाह किया। एकदम से नेतन ने जवाब, खुदा ने भी तेरा गुनाह माफ किया, तू मरेगा नहीं। हम सब गुनाह करते हैं, लेकिन अफसोस कि हम गुनाह के कफारा के लिए लोगों को ढूंढते हैं, रुपए पैसे देने की कोशिश करते हैं, लालच के अंदर हैं, चिल्ला कशी करते हैं। बहुत से मज़ाहिब के अंदर चिल्लों का है, इतनी बार ये पढ़ो, इतनी बार ये करो, इतनी बार ये करो, ये सिजदे करो, वो सिजदे करो। सिर्फ यीशु मसीह, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास एक ही वसीला है, एक ही काबिल है, खुदावंद यीशु मसीह। उसका रूह हमें गाइड करता है। लेकिन क्या कभी हमने खुदा के इस इंतबा को कभी गौर से सोचा, कभी समझा कि हम कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किन हालात में हम अपने आप को खुदा के सामने पेश कर रहे हैं? या महज हमारे अंदर कुछ और चीजें चल रही होती है? एक लम्हे के लिए भी हमारे अंदर कभी खुदा का शायरा तक आया है कि हम खुदा का कलाम सुनने के लिए जा रहे हैं?
धोखा नहीं देता, कोई इंसान अपने आप के साथ झूठ नहीं बोलता। लेकिन अफसोस आज की नस्ल और मीका के दौर की नस्ल अपने आप से भी झूठ बोल रही थी, अपने आप को झूठी तसल्लियां ले रहे थे। वो खुद गुनाह करके खुद को तसल्ली देते थे कि हम शायद बच जाएंगे। ऐसा हरगिज नहीं। आज अपने आप के साथ ऐड करेंगे, क्या हम खुदा के कलाम के मुतलाशी हैं या कुछ और चीजों के या दुनिया के? बस जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि एतदाल के साथ उसी तरह जिस तरह खुदा ने उसे रखा हुआ है उसके मुताबिक अपने आप को समझे। वरना शायद हमारे लिए सुख नहीं होगी, हमारे लिए तारीकी छा जाएगी, अंधेरा हो जाएगा और खुदा का कलाम हमारे लिए बाइसे अदालत होगा। जैसे मीका ने कहा कि तुम अदालत से वाकिफ हो, ये ना हो हमारे सामने हर रोज खुदा की अदालत है। खुदा अपनी आंखें खोले और अपने आप को जांचे। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। आइए अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। अपनी आंखें बंद करेंगे। जलाल के बादशाह मसीह यीशु में हमारे जिंदा वफादार ला तब्दील आसमानी पिता, खुदा हम तेरे हजूर में हम मुल्तजी हैं कि हमने बहुत अरसा, बहुत दिन, माहो साल तुझसे दूरी में और इस गुमराही में गुजार दिए कि शायद हम खुद को ठीक रास्ते पर ले जा रहे हैं, लेकिन शायद हम अपने ख्वाहिशात के असीर होकर तुझसे दूर चले गए हैं। हमें फजल दे कि हम कलाम की हकीकत को जान सकें और तेरी मर्जी के मुआफिक अपने आप को तेरी हजूरी में कायम कर सकें। हमें इस कलाम के वसीला से अपनी जिंदगी पर गौर करना सिखा, यीशु मसीह के नाम से आमीन।